हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम करेंगे द गुप्तास एंड देयर इज अ सक्सेसर इज एडी 300 टू द 750। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इसमें गुप्त वंश था उनके उत्तराधिकारी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बिहार के बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये हर जगह के लिए विस्तृत रहेगा क्योंकि इसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम समझेंगे। साथ में आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है शब्दों का डिस्प्ले होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो सदैव आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a most important chapter discussing here the Gupta and there is a successor AD 300 to 750. There is a most important chapter, but important here a point political history. What is the political history of Guptas here? There is a most important things here, an important question. The Gupta dynasty was established a Shri Gupta. There is established here a Shri Gupta who is probably belong to a Vaishya caste. There is belong to the Vaishya caste. He is hailed from to the either Magad, Bihar, and the Prayag is the eastern UP. He is a son of Ghatotkacha, who is acquired the title of Maharaja. There is a most important. He is the son of the Ghatotkacha, who is acquired the title of Maharaja. Appear to be some small king about whom nothing is a much is a now. There is a most important, but first here Chandragupta Pratham means Chandragupta first, and the real founder of the Gupta empire was a Chandragupta first. There is a most important here, the founder of the Gupta empire here, Chandragupta first. There is a time here AD 392 334. There is the most important time for the Chandragupta first or established of the empire, and the earlier of his station in the AD 390 mark of beginning of the Gupta era, and it was the henceforth is a use all there is record, and also those there are federatories, and he that took the title of Mahadhiraj. They took the title of Mahadhiraj of King of Kings. He is a married Lichvini princess is a Kumari Devi. There is a most important married Lichvi princess a Kumari Devi. This event is recorded in a series of gold coin issued by the Gupta. There is a most important here. This is an event of recorded in the series of a gold coin issued by Gupta. It is a pair that is a mentionally is alliance give legitimacy on prestige and strength of the Gupta king. Chandragupta was ruling over Magad, Bihar, Saket, modern Ayodhya. There is a most important. Saket is a modern Ayodhya and the Prayag, modern Allahabad, with the capital of Pataliputra. The Pataliputra at this time is a modern time is called to the Patna. There is a most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आज महत्वपूर्ण चैप्टर जिस पे हम डिस्कस करेंगे वह है गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि गुप्त वंश कौन थे और उनका कैसे जो है उद्भव हुआ और कैसे राज्य गद्दी को इन्होंने प्राप्त किया और उनके उत्तराधिकारी कौन थे।
ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और जानना आपके लिए बहुत काफ़ी रोचक भी रहेगा, क्योंकि हम जो है गुप्त वंश के बारे में जानना चाहते हैं और ये कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उनके सिलेबस में गुप्त जो एम्पायर्स है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, कहते हैं राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत जो है गुप्त वंश की स्थापना अगर हम देखें तो श्री गुप्त को माना जाता है, यानी गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त को माना जाता है। संभवतः वो वैश्य जाति से संबंध रखते थे, यानी वैश्य जो है जाति थी जिससे वो संबंध रखा करते थे। आपको पता है कि क्षुद्र जो है सबसे नीचे है, वैश्य जो किसान के तौर पे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वैश्य जाति संबंध रखा करते थे। वो मूल्यतः मगध, बिहार तथा प्रयाग यूपी के वासी माने जाते हैं, यानी बिहार या जो है प्रयाग के आसपास के निवासी थे। और उसके पुत्र यानी उसके पुत्र घटोत्कच जिसे महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, यानी ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया कि उनके पुत्र जो था घटोत्कच जिसने महाराज अधिराज का जो उपाधि धारण किया था, यानी महाराज का उपाधि धारण करके एक छोटा मोटा शासक प्रतीत होता था, यानी ये बहुत बड़े शासक नहीं थे। ठीक है, बेशक श्री गुप्त ने जो है इनकी जो है गुप्त वंश की जो है स्थापना किया था, लेकिन उनके पुत्र जो घटोत्कच जो कि काफ़ी छोटे मोटे शासक ही के रूप में थे, किंतु उनके विषय में जो है अधिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना जो है मूर्खता होगी, क्योंकि हमें इसके बारे में अधिक और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बात अगर हम करें इनके प्रथम जो है चंद्रगुप्त प्रथम की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कहा जाता है कि गुप्त वंश का जो वास्तविक नींव रखा गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही रखा गया था, यानी बेशक के लिए जो है श्री गुप्त ने इसको जो है वंश को आगे बढ़ाया, राज्य जो है पाया, लेकिन वो छोटा सा राज्य था। लेकिन इस राज्य को विस्तार करने का श्रेय जो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, जिन्होंने बहुत ही जो है कूटनीति से, बहुत चापलूसी से, अब बहुत ही जो है वीरता के साथ इन्होंने जो है अपने राज्य को काफ़ी फैलाया। कहते हैं गुप्त वंश की वास्तविक नींव चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में जो था जो है 319 से 334 में पड़ी थी, और सन जो है 319 से उसकी जो राज्य आरोहण से गुप्त साम्राज्य का आरंभ माना जाता है, यानी इसकी जो आरंभिक टाइम है वो 319 माना जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समस्त अभिलेखों से इसकी उल्लेख हमें मिलता है तथा उनके समातों में भी उसमें महाधिराज की उपाधि धारण किया था, यानी जहाँ पर घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण किया था, यहाँ पर जो ये महाराज अधिराज की उपाधि धारण किया था। इसका अर्थ होता है कि किंगों का किंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसका विवाह जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारी देवी से हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं की श्रृंखला में इस घटना को वर्णित भी किया गया है। कहते हैं ये प्रतीत होता है कि इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सम्राट की वैधता, सम्मान और शक्ति और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ये विवाह जो था कई मानने में इम्पोर्टेंट था, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम की शक्ति और भी बढ़ गई, और चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है मगध, बिहार, सकेत, आधुनिक अयोध्या और प्रयाग जो कि वर्तमान इलाहाबाद है तक जो है विस्तार हो गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये कहते हैं विवाह बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो कि समृद्ध जो है इनके जो है साम्राज्य में कर दिया, और उसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया गया। पाटलिपुत्र सोचिएगा क्या है, पाटलिपुत्र आपका पटना है। ठीक है, पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, प्रयाग को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और मगध को बिहार के नाम से जाना जाता था, और साकेत को जो है आधुनिक अयोध्या। तो कहते हैं ये नाम जो है समय अंतराल बदलते रहते हैं, तो इसका आपको जो है टेंशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर करने की आवश्यकता है। The next topic is the most important here, a Samandragupta. Who is a Samandragupta? There is the most important. Chandragupta was succeeded by his son, is a Samandragupta. Chandragupta succeeded by the son of here, a Samandragupta, AD here, 335 to 375. There is a long time. Samandragupta followed the policy of conquest, and the emotions is enlarged his kingdom, and his achievements are recorded in the long inscription. A Prasasti is written in the pure Sanskrit by the court poet Hari Sen. There is the most important Hari Sen written there is the pure Sanskrit by the Hari Sen, and the inscription is the enlarged grapes of the pillar at the Allahabad.
There is engraved on a pillar at Allahabad. It is emergent in their peoples as their reasons is a concrete the Samudragupta. We is adopted a different policy of different area and as a conquered by him. That is the most important. In the Ganga Yamuna Dwab is a flow of policy of annexations. He has defeated a 9 Naga rules and incorporated their kingdoms in the Gupta Empire, and he then proceeded to the conquer that of forest kingdom of central India. Mentioned are the Atvarajyas as the rulers of this tribe, and the area were defeated on the forced into the servitude. The area had a six a value as a contained a route to the South India. It is invalid in the Samudragupta to proceed to the south along to the eastern coast and the conquering 12 kings on the way and the reached as far as Kochi near Chennai. Samudragupta stated of the annexes and their kingdoms and liberated and stated and these kings on their horn. And this policy of political is a consolation for the South India was adopted because he knew that it is difficult to keep them under to control and surveillance and some of the returned it to the capital in the north. And so it was enough for him that this is a state or recognize his sovereignty and paid him to the tribute and present. That are most important. According to the Allahabad inscription, the warnings 5 founder of kingdom and 9 republican state of Punjab and Western India were overwhelmed by the consequence of the Samudragupta. They agreed to pay of tribute and the taxes to the Samudragupta and will his order without any fight. The inscription added that Samudragupta also received a tribute and from many kings of the Southeast Asia. It is generally believed that is that tough he had spread his influence over a vast area. Samudragupta exercises directly administration control mainly over to the Indo-Gangetic basin. And he is celebrated his classification by performing as a horse, as a sacrifice, as a Ashmaveda. And there are issue of the Ashmaveda types of coin. Ashmaveda is a types of coin. The coin is a processing their sense of sacrifice on their occasion. Samudragupta was not only a conqueror but also a poet, a musician, and the patron of learning. His love and music are tested by his coin that is represented his on the playing on the veena. Is means lute. Here show the most important map here of the Gupta Empire. The close of the 4th century. There is a most important figure here on the map. There is a most important area show in this side. There is the most important here. The next here is a Chandragupta II. Chandragupta II is also known as a Vikramaditya. Vikramaditya is a very famous king on this time. Samudragupta was succeeded by his son Chandragupta II. Chandragupta II is the AD of 375 to the 414, also known as a Chandragupta Vikramaditya. Their full name of here, a Chandragupta Vikramaditya, is not only extended his father empire, but also is a consolidated his the position through the is a maternally is alliance. The maternally is alliance with other royal descendants of the period. He married of Kuber Naga. He is married of the Kuber Naga, the Naga princesses, and had daughter of Prabhavati. The daughter of here Prabhavati from here as a Prabhavati was given a marriage by the Rudsen II. There is a daughter of Prabhavati's marriage here Rudsen II of the is a Bakatak descent ruling of Deccan. After death of the husband, the Prabhavati ruled to territories region of minor son. The son here a minor. With the help of her father, the control of is a Bakatak. There is a territory of proved to the very beneficiary of Chandragupta II, means Vikramaditya, as was now able to target his other enemy better. There is the most important.
His greatest military achievement was his victory over to the Shaka king and who were the ruling in the western India from the last 300 years. This castle made of the Gupta Empire reached up to the western coastals. On the iron pillar or inscription of the Mehroli in Delhi indicate that his empire of included even northern western India, Bengal. He took his title of Bikram Aditya is the one who is powerful as a son. Chandragupta II is remembered of the pathogony of art and literature. He is credited by the maintenance of 9 luminaries as a Navratna in his court. The great Sanskrit poet is a playwright. Kalidas was the most notable of them all. There is the most important here, Kalidas. The Chinese Buddhist pilgrims of Fa-Hien is a AD 404 to 411 visit to the India during to the regional he has left on account of the life of people in India in the 50th century AD. There is a most important here. A Chinese Buddhist is a pilgrims of Fa-Hien. There is a most important here. The next decline. There is a most important decline here. Chandragupta II was succeeded by his son Kumar Gupta. The Chandragupta was succeeded his son of the Kumar Gupta. Kumar Gupta is AD time is AD 415 to the 455. He was able to maintain the empire built of his father, but during the later part of the line, and there was a threat from to the Hunas of the Central Asia. After the occupy of battles of the Hunas is across the Hindkush mountain and the enter of India. Their first attack during the reign was repulsed by the princes Sakuntalagupta. The Gupta is however could not be protect their empire for the long and the success wave of the Huna is involvement to the maid of the Gupta is very big. And this was only of the main factor which accelerated there is a disintegration of Gupta Empire. There is the most important here. The inscription issued by the Hunna and showed there is AD of 485 they had occupied. Eastern is a Malwa and the large part of the central India. Punjab and Rajasthan also passed into their hands. The first important rule of the Hunas is India was Turamana, who is acquainted to the area of sketching up to the Iran of near Bhopal in central India. His son Milukurukala is a succeed. Himahinas head of the 515, he described his text as the tyrant and iconolist is both. There is the Yashodharman. Yashodharman of is a Malwa and is a Narsingh Gupta is a Baladitya of the Gupta descent. Finally defected his is a Milhi Ruku. But is a discovered over to the Hunas and could not be received the Gupta Empire. Besides the Huna is the inversion, there is also a gradual decline in the economical poverty. It is the indicated by the gold coin of the later Gupta ruler, which has a less of gold content and a more is alloys. He also noticed the gradually disappearance of coin in the coastal Gupta period. It led to the king of the make a payment in formal land rather than the cash. It is evidenced by the discovery of large-scale land grant and creditors and donating to the land of Brahmans and the officer. There is the most important here. The practice of giving land of religious and the scholar is a purpose in the life of the service as a direct to the state is a normally termed as a federalism. Under this practice, the domain to one of who receive the great aim and who give to the right not only to collect the taxes but also to the minister has a donated land. And this creates a small pocket of the power try careless to the expanded their sphere of influence at the cost of the ruling authorities. The decline of the Gupta Empire resulting in the emergence of the numerous ruling that centric in different parts of northern India, and the prominent among them were the Pushpabhuti of Thanesar, and here a Mukhari of Kannauj, and the is a Matrak.
द matriarch of the Ballavi. Matriarch of the Ballavi, there is the political sense in the peninsular India was no different. There is a Chalukya and Pallavas are emerged as a strong religious power in Deccan and the northern Tamil Nadu respectively. That is the most important here. यहाँ पर देखा जाए तो हमारा अगला जो है वो है समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक रहेगा। कहते हैं समुद्रगुप्त जो था सन जो है 335 से लेकर 375 तक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने जो है युद्ध तथा विजय की नीति का अनुसरण किया एवं अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार भी किया और उसकी उपलब्धि का संपूर्ण विवरण उसके राज दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो है संस्कृति में लिखे गए वर्णन में लिपिबद्ध किया गया है। यानी जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त के विषय में विस्तार पूर्वक जो है लिपिबद्ध किया हुआ है और इसकी जानकारी हमें साफ मिलती है। यह आलेख जो इलाहाबाद के निकट एक स्तंभ पर वर्णित है और यह समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए वंशों तथा क्षेत्रों के नाम से प्रताड़ित है और उसने हर जीते हुए क्षेत्र के नीच जो है विभिन्न नीति अपनाई थी। यानी हर क्षेत्र को जीतने के लिए उसने विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया था। गंगा यमुना द्वाब ने उसने दूसरे राज्यों के जो है बलपूर्वक सम्मिलित करने की नीति का अनुसरण किया था। उसने 9 नागा शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तब पश्चात वह मध्य भारत के वन प्रदेशों को और बढ़ा जिनका जो है उल्लेख हमें अतवीरा राज्य के रूप में मिलता है और इस कबालाई क्षेत्र के शासक को पराजित हुए और दास्तों को बांधे हुए। इस क्षेत्र की राजनीतिक दृष्टि से भी व्यापक महत्व रहता है क्योंकि इसमें दक्षिण भारत के जो है मार्ग जाता था। उसने समुद्रगुप्त के दक्षिण की ओर कूच करने में सक्षम किया तथा जो है पूर्वी तट से जीते हुए 12 शासकों को पराजित करते हुए वो सुदूर कांची यानी चेन्नई के निकट तक पहुंच गया। समुद्रगुप्त ने राज्यों के बलपूर्वक अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए स्थान प्रभुत्व का परिचय भी दिया तथा उस शासकों को उनके राज्य वापस लौटा भी दिए। यानी जीतने के बाद उसने उस राज्य को जो है उसी शासक को लौटा दिया लेकिन उसने अपने अधीन कर लिया। दक्षिण भारत के लिए राजनीतिक समझौता की नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि उसे ज्ञात था कि एक बार उत्तर भारत में अपने क्षेत्र में लौटने के पश्चात इन राज्यों पर नियंत्रण स्थापित रखना दुष्कर होगा। इसलिए उसने जो है जीतने के बाद जो है उसी शासक को अपना दास बना के छोड़ देता था। अंत उसके लिए इतना पर्याप्त था कि वह शासक उसकी सत्ता को स्वीकारे तथा उसे कर तथा उपहारों का भुगतान करे। इलाहाबाद अभिलेख के अनुसार 5 पड़ोसी सीमावर्ती प्रदेश था जैसे पंजाब एवं पश्चिम भारत के 9 जो है गणतंत्र समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत हो गए थे। उन्होंने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त के धन तथा करों का भुगतान करना था एवं उसके आदेशों का पालन करना स्वीकार कर लिया था। यानी देखा जाए तो समुद्रगुप्त का यही उद्देश्य था कि राजाओं को जो है युद्ध में हरा देना और वो राज्य को आपस जो है उन्हीं को सौंप देना। उनको सौंपने का ये मतलब था कि वो हर जगह पर कंट्रोल करना उसके लिए संभव नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि जो राजा हो उसको कर दे और जो है उसको उपहार दे समय समय पे। इसलिए समुद्रगुप्त ने ऐसा जो है नीति का अनुसरण किया। इससे देखा गया तो बहुत से जो है 9 गणतंत्र जो है राज्य जो स्वयं ही जो है समुद्रगुप्त के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसने क्या किया उसको उपहार देने के लिए और कर देने के लिए बाध्य हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं अभिलेखों से ये भी ज्ञात होता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के भी कई शासकों ने समुद्रगुप्त के जो है धनादित्य प्राप्त होना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। मुख्य रूप से यह माना जाता है कि हालांकि उसका साम्राज्य एक विस्तृत भूखंड तक फैला हुआ था किंतु समुद्रगुप्त का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य गंगा घाटी में ही था। यानी गंगा घाटी के आसपास ही वो अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। वो अपनी विजय का उत्सव जो है अश्व बलि देकर मनाता था। यानी अश्व की बलि देना उसकी जीत का जो है सबसे बड़ी प्रचालक था। जो अश्वमेध जो था एवं उसका अवसर पर जो है अश्वमेध प्रकार के सिक्के बलि के वर्णित करके सिक्के जारी भी करता था। समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं था बल्कि एक कवि, एक संगीतकार तथा एक शिक्षा का महान संरक्षण भी था। संगीत के प्रति उसकी प्रेम उसकी उन मुद्राओं में मुखरित होती है जिनमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी सिक्कों से भी उसकी हमें महानता का जो है कुछ प्रमाण मिलते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष
चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत काफ़ी शक्तिशाली था, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हो। आपने कार्टून भी देखे होंगे, कई जगह जो है विक्रमादित्य का चर्चा भी सुने होंगे। वो काफ़ी जो है ताकतवर था और ये जो है काफ़ी समुद्रगुप्त का पुत्र था। देखा जाए समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय उसका जो है उत्तराधिकारी बना और उसे जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसे मात्र अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि इस युग के अन्य वंशों के साथ वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति को और भी दृढ़ कर लिया। उसने नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया तथा उसने प्रभावती नामक पुत्री का जन्म हुआ। कहते हैं इसकी पुत्री का जो विवाह था, प्रभावती का विवाह दक्षिण में शासन कर रहे बकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। कहते हैं रुद्रसेन की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के उपरांत जो यहाँ प्रभावती ने अपने पिता की सहायता से अपने अव्यक्त पुत्र के संरक्षण के रूप में शासन किया। यानी इसका पुत्र जो था नाबालिग था और अपने पिता के संयोग से उसने जो है वहाँ पर शासन किया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कलावती, वो गलत उच्चारण है, गलत मिसप्रिंट हो रखा है। यहाँ प्रभावती आएगा, क्योंकि प्रभावती के ही पति के मृत्यु के पश्चात जो था यहाँ पर अपने पिता के संरक्षण में जो है उसने शासन किया था। बकाटक क्षेत्र पर नियंत्रण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ कि वो अपने शत्रुओं पर और बेहतर तरीके से आक्रमण कर सकता था। क्योंकि देखा जाए तो रुद्रसेन के सारे साम्राज्य जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के अंतर्गत आ गया था और सभी शत्रुओं को आसानी से कुचल सकता था। तो ये जो है बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। उसकी महानतम सैन्य उपलब्धियां पश्चिम भारत में 300 वर्षों से शासन कर रहे शासक साम्राज्य पर विजय रही। इस विजय के फलस्वरूप जो है गुप्त साम्राज्य की सीमाएं भारत के पश्चिमी तट तक पहुंच गई। यानी धीरे धीरे जो ये क्षेत्र थी बढ़ती ही चली गई। और इस बात का अंदाज़ा ये लगा कर देखा जा सकता है कि आपको समक्ष जो है ये मानचित्र आया है जो गुप्त काल के अंतर्गत है। आप देख सकते हो कि इसका जो राज्य था हर एक क्षेत्र में फैला हुआ था। अगर हम नीचे की मैप देखें तो इसका भी जो है काफ़ी गुप्त काल के समय ये जो था राज्य फैला ही चला गया था। आप देख सकते हो कि इसके जो राज्य संपूर्ण जो है भारतवर्ष में फैला हुआ था। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त का जो शासन काल था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसके द्वितीय ने जो है सफलतापूर्वक इसको जो है फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उसके राज्य का विजय हम अगर देखें तो महराली दिल्ली में स्थित एक लोह स्तंभ में हमें सारी बातों का जो है संकेत भली भांति प्राप्त होता है कि उसने साम्राज्य में उत्तर जो है पश्चिम भारत तथा बंगाल के सभी राज्य थे। यानी हमने मैप भी देखा, उसमें आपने देखा होगा हर एक क्षेत्र पर जो था इसका दबदबा बना हुआ था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था, अर्थात सूर्य के समान बल जो है बलशाली विक्रमादित्य। आपने कहानी में भी सुना होगा कि विक्रमादित्य कितने पावरफुल था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय काल तथा साहित्य के संरक्षण के लिए भी विख्यात था। उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, यानी उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। संस्कृति के महान कवि तथा नाटककार कालिदास भी इनमें से सर्वाधिक चर्चित रहे, यानी कालिदास इनके ही समय अवधि में थे। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रा फरहान यानी सन 404 से लेकर 411 ने जो उसके शासनकाल में भारत की यात्रा भी किया था। यानी फरहान जो था इस चंद्रगुप्त द्वितीय के अंतर्गत ही जो है यात्रा किया था। उसने 5वीं शताब्दी के लोगों के जीवन का विवरण भी दिया। यानी फरहान के आपने देखा ही होगा, उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था इस समय काल के बारे में बताया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पतन। आखिर चंद्रगुप्त द्वितीय का पतन कैसे हो गया? ये जो चंद्रगुप्त हम पढ़ रहे हैं साम्राज्य, उसका पतन होने का कारण क्या था? कहते चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त हुआ। यानी देखा जाए तो विक्रमादित्य के पश्चात जो था कुमार गुप्त हुआ, जो कि 415 से लेकर 455 तक शासन पर अपना आरूढ़ हुआ। अपने पिता सबकी साम्राज्य की रक्षा करने में वह आरंभ में सफल रहा, किंतु उसके शासन के उत्तरदायित्व में मध्य एशिया में शासन कर रहे हुनों ने उन्हें चुनौती मिलनी आरंभ हो गई। यानी हुनों ने जो है इस पर बार बार जो है चुनौती देता था, बार बार आक्रमण करता था, जिसकी वजह से कुमार जो है गुप्त के लिए बहुत ही कठिनाई बढ़ा दिया। बैक्टीरिया पर आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत उन्होंने हिंद कुश पर्वत पर पार कर भारत में प्रवेश कर गए। हुनों का प्रथम आक्रमण राजकुमार जो है स्कंदगुप्त द्वारा विफल कर दिया गया, किंतु गुप्त शासक हुनों के
वर्ती आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए और बार बार के आक्रमण ने साम्राज्य को दुर्बल बना दिया। और यह जो है गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी घटकों में से मुख्य माना जा सकता है कि बार बार जो था हुनों के आक्रमण ने जो है चंद्रगुप्त के शासन को बिल्कुल ही हिला के रख दिया। उसका नींव जो था खत्म होने के कगार पे आ गया था और यही सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। हुनों द्वारा लिखे गए अलेखों से ज्ञात होता है कि सन 485 तक उन्होंने जो है मलवा अथवा मध्य भारत के बड़े हिस्से पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पंजाब तथा राजस्थान भी उनकी झोली में थे। हुन वंश का प्रथम चर्चित शासक तिरमन था, जिसने मध्य भारत में भोपाल के निकट ईरान तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर चुका था। उसका पुत्र जो था मेहरकुल सन जो है 515 में उसकी उत्तराधिकारी बना। अलेखों में उसका विवरण तनाशाह तथा क्रूर शासक के रूप में मिलता है। मलवा के शासक जो है यशोधर्मन तथा गुप्त शासक नरसिंह गुप्त जो है बलादित्य ने अनंत जो है मेहरकुल को पराजित भी किया, किंतु हुनों पर यह विजय भी गुप्त साम्राज्य का नया जीवन दे न सकी। हुनों के आक्रमण के अतिरिक्त आर्थिक समृद्धि में भी हर्ष होता चला गया। यह उत्तरवर्ती गुप्त शासकों के काल की मुद्राओं से भी हमें ज्ञात होती है, जिसमें सोने का मात्रा कम थी तथा मिश्र धातु की अधिकता थी, यानी सोना के प्योरिटी में भी यहाँ पर कमजोरी आ गई। हम गुप्तोत्तर काल में जो है मुद्राओं की क्रमिक जो है कमी भी पाते हैं और इसने शासकों के नगद राशि के स्थान पर भूमि के रूप में जो है भुगतान करने की प्रक्रिया को जन्म दे दिया। इस तथ्य का ज्ञान जो है ब्राह्मणों तथा अधिकारियों को बड़े पैमाने पर दान किए गए भूखंडों के अधिकार पत्र से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। कहते हैं धार्मिक तथा सांप्रदायिक उद्देश्य के जो है भूखंड दान के बदले शासन को सेवा प्रदान करने की परंपरा जागीरदारी प्रथा कहलाई और इस प्रथा के अंतर्गत दान पाने वाले व्यक्तियों को पात्र का संग्रह कर नहीं सके, बल्कि दान में प्राप्त भूमि के प्रबंधन का भी अधिकार दिया जाता था। इसमें विभिन्न छोटे शक्ति केंद्र के जन्म दे दिया, जिन्होंने शासन को चुनौती देने के लिए अपने प्रभाव को काफ़ी विस्तार कर लिया, यानी छोटे छोटे एरिया भी जो है राजाओं को जो है चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। गुप्त साम्राज्य के पतन के जो है परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शासक वंशों का उदय हो गया, यानी हर क्षेत्र में अपने आप को शासक घोषित कर लिया, जिसके वजह से गुप्त साम्राज्य था बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे आ गया। इसमें प्रमुख रहे थानेश्वर के जो है पुष्पभूति, कन्नौज के मुखौरी और बल्लभी की मैत्रक। देखिए ये सारे के सारे जो थे उसी तरह थे। आगे जो जीत हासिल किया वो मैत्रक थे, जिसके विषय में हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं गुप्त साम्राज्य को संभालना बहुत ही कुमार गुप्त के लिए संभव नहीं था और इसके वजह से ये साम्राज्य था जो था बिल्कुल विघटित हो गया। और विघटित होने का सबसे बड़ा कारण जो था हुन का बार बार आक्रमण करना। बार बार आक्रमण करने से जो था ये बिल्कुल ही खोखला हो गया था। इसका प्रमाण आपने समझ लिया होगा कि उस समय जो सोने के सिक्के बनाए गए थे चंद्रगुप्त के समय के अंतराल में, लेकिन अब जो थे उसमें मिश्र धातु का उपयोग करने लग गए, यानी सोना की प्रायोरिटी जो थी कमती चली गई। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण था उसके विघटन का। भारतीय प्रायद्वीपों में भी राजनीतिक परिषदता भिन्न से जो है विभिन्न नहीं था। दक्षिण उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में क्रमशः चालुक्य और पल्लव जो है मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रकट हुए, यानी चालुक्य और पल्लव भी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी मजबूती के साथ उत्पन्न हुए, जो कि जो है गुप्त साम्राज्य का पतन का सबसे बड़ा कारणों में से एक माना जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था चंद्रगुप्त की अत्यंत महत्वपूर्ण खत्म हो जाता है। उसके पश्चात जो हम आगे करेंगे मैत्रक करेंगे और जानेंगे उसमें क्या है। तो आप इसी तरह त्रिपाण से बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल
यूज़फुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।